Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. Okay, so beta, in this class, what we have to do? We have to we have to study a new chapter. New chapter means what chapter we have to discuss? We have to discuss about bones and muscles. Okay, this is the chapter names. So here in this chapter we will discuss about our body parts and what is the role of our bones and muscles and different types of muscles that are in our body. Okay, so these things we will discuss where? In this chapter, as well as we also discuss some of the interior organs of our body. Interior organs means the organs that are inside our body. Yes, that are inside. What does it mean? Inside means the organ which is not visible. For example, hand, eyes are visible part of our body. But if I talk about lungs, stomach, liver, these are visible? No. So these are the interior or we can say internal organs of your body. Okay. So all these things we will discuss where? In this class. Okay. So in this class, it's lots of new things we will going to discuss. Okay. So are you ready for this class? Ready? So let's come with me and let's start this class. Okay, so let's start. This is chapter 4th. Name of the chapter is bones and muscle. Okay, so first we will start with our body is made up of bones, flesh and muscles. हमारी बॉडी किन तीन चीजें से बनेगी? हमारे बोन्स होंगे, है ना, फ्लैश होंगे एंड मसल्स होंगी. So the soft part of our body are called muscles. जो हमारी बॉडी का सबसे soft parts है वो क्या है बेटा? Muscles. The hard part of our body is called bones. देखिए soft part आपकी बॉडी का है muscles, hard part आपकी बॉडी का है bones. Okay? So the bone and the muscles give shape to our body. So हमारी बॉडी में आपकी बोन्स एंड मसल्स ही तो है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इस तरीके की शेप है. अगर हमारी बॉडी में मसल्स और बोन्स नहीं होते तो हमारी बॉडी की कोई शेप ही नहीं होती, है ना. अभी हम सबकी एक प्रॉपर डेफिनेट शेप है ना. ऑफ कोर्स कोई थोड़ा मोटा है, कोई पतला है, बट एक डेफिनेट शेप तो है. वो किसके कारण है? बोन्स एंड मसल्स के कारण. ओके, सो they also help our body to work. bones and muscles किस चीज में हेल्प करती है बेटा? आपकी बॉडी को फंक्शन करने में, काम करने में. ठीक है? ओके, सो वन एक्टिविटी इज फॉर यू. विच एक्टिविटी? दिस एक्टिविटी. सो लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. आप हमारे ये बॉडी पार्ट्स की पिक्चर को ऑब्जर्व करिए. आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी. सो राइट वेदर दे आर इंटीरियर और एक्सटीरियर और वी कैन से इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जैसे इंटरनल मीन्स जो पार्ट हमारी बॉडी के अंदर है, दैट आर नॉट विजिबल बेटा, आप उनको देख नहीं सकते. दैट आर इंटरनल ऑर्गन. जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया था, हार्ट, stomach, kidney, lungs. We cannot see all these organs. Yes? So these are the internal organs. What it is called? Internal organs. Or external organs which are visible like our hand, our eyes, our nose, our ears, that are visible to you. Yes? Can you see my hands? Can you see my eyes? So these are the external organs of your body. So I discuss about internal and external. So it's easier for you to write the names. It's easier. So let's try it yourself. Okay. So the next topic is the skeleton. ये दिख रहे हैं? Can you see this picture? This is what? A skeleton. This is known as skeleton. What is a skeleton? The bone in our body form a framework. हमारी बॉडी में क्या है? एक पूरी फ्रेमवर्क है. So this framework of bone is called skeleton. जो हमारी बॉडी में ये पूरा फ्रेमवर्क है, ये देखो एक ढांचा टाइप का, समझ पा रहे हो,
है ना। ये है बेटा हमारा स्केलेटन। जब किसी की बॉडी मर जाता है, जल जाती है, उसके बाद उसके कंकाल बचते हैं, है ना, ऐसे ही होते हैं, है ना। आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आप साइंस लैब में जाके ये देख भी सकते हैं, है ना। सो इट गिव्स शेप्स एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है। कौन? स्केलेटन। ओके, with the skeleton we would not be able, okay, without the skeleton we would not be able to stand straight. अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ही नहीं होता तो हम लोग सीधे खड़े ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देने का काम है किसका? स्केलेटन का। वेरी गुड। ओके, स्केलेटन इज क्लियर। Next is bones. Bones is the hard part of our body and the soft part is the muscles. And with bones and muscles, our body is made. Okay. So what is the bones? So there are 206 bones in our body. हमारी body में कितने bones हैं? 206. Okay. So there are 206 bones in our body that form the skeleton. और यही bones है तो बन के skeleton बना है. Okay. So bones are hard and stiff. Bones एकदम hard होती है, आप देख सकते हैं, है ना। The bones are the hard part of our body. So the skeleton protects from delicate organs which are located inside our body, such as lungs, brain, liver and heart. हमारी bones उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स है ना, जैसे कि आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका लिवर, आपका लंग्स, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बोन्स। बोलते हैं ना बोन्स टूट जाती है तो फिर फ्रैक्चर लग जाता है, लगता है प्लास्टर लग गया बोलते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, क्या हमारी बॉडी में हाउ मेनी बोन्स आर देयर? सो इन आवर बॉडी देयर आर 206 bones, and bones will give protection to some of the organ of our body. Okay, next is joint. Next topic is joint. What is joint? वैसे आप joint किसको कहेंगे? जब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ रही है, this is a joint. Okay, so the place where two or more bones are joined together are called joints. जब एक या दो या फिर दो से ज्यादा बोन जहां जुड़ रही है वो है जॉइंट। ओके, वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स। इसलिए देखते हो हम हाथ है, ये एक बोन होगी, एक ये बोन होगी, इसको बीच में एक किसने जॉइंट किया बेटा? ये जॉइंट्स है बीच में, तभी तो हम इसको मूव कर पा रहे हैं। अगर किसी का ये जॉइंट फंक्शन ना करे तो हाथ नहीं मोड़ पाएंगे फिर, है ना। ये देख रहे हो ऐसे हमारे लेग्स में है, 1 bone 2 bones आर जॉइंट। आप ये देख लीजिए यहाँ पे, देखते हो ना कभी कभी जैसे जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जैसे जब आपकी एज जब आप 50s 60s के हो जाओगे तो आपके जॉइंट में दिक्कत होने लगेगी। जॉइंट मत ये जोड़ों में जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाथ के जॉइंट्स में। जॉइंट मतलब जहां पे दो बोन्स जुड़ रही है वहां पे ना आपको बेंड करने में दिक्कत होगी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। ये सब प्रॉब्लम अभी नहीं होने वाली आपको, जब आपकी एज बढ़ेगी तब, ठीक है। तो तब के लिए है ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो जॉइंट समझ में आ गए, जहां 2 बोन्स जॉइन हो रही है। ओके, वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स। और हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं जॉइंट्स। देखो अगर मैं ऐसे थोड़ा सा झुकूंगी भी तो मेरे बैक में जॉइंट है, दैट्स व्हाई आई कैन बेंड। Okay, I can bend my hand, I can bend my legs, okay, just because in my body I have joints. Okay, our elbow and knees are joints. Elbow और knees में joints होते हैं, that's why our hand and our legs can able to bend. Clear? So joints are clear, bones are clear, and the first one, skeleton. Skeleton are the frameworks, and with the bone, skeleton is made, and joining the bone is known as joints. When two bones joins, the place where two bones joins are called joints. Okay, so it is clear. Say it is clear. Okay, so next move. So here the picture of the joints are given: elbow joint, neck joint, and wrist joint. देखो, our fingers is also able to fold like this. Can you fold like this? So here in the fingers also 1 and 2. 2 joints are there. Yes, 1, 2. Yes. So and our neck also bones are there, so that's why we can able to bend our neck like this. Here, right side, left side, up, down like this. Okay, so neck joints are there, wrist joints are there. Okay, we can move our wrist also like this. Okay, here we can see.
Okay, so in our body there are some large bones are there, some small bones are there. Okay, okay, this is the important one. The longest bone in our body is the thigh bone. The longest bone in our body is the thigh bone. The smallest bone in our body is the ear bone. So ear is in the ear. So in the ear we have the smallest bone and the thighs are the longest bone. Clear? Okay. Let's move on the muscles. What is muscles? हम लोग कभी कभी होता है ना, दिखाओ अपनी मसल्स दिखाओ, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, शो मी योर मसल्स, है ना, जो जिम विम करते हो मसल्स दिखाते हैं. सो व्हाट इज मसल्स? ओके, so muscles are the soft part of our body. We already discussed the soft part of our bodies are muscles and hard part of our bodies are known as, tell me, bones. Clear? Very good. I'm thinking कि आप लोगों को देखो आराम आराम से पढ़ेंगे बट चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, और आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो भी रही होगी. ओके, सो muscles are the soft part of our body. Muscles cover our bones and helps them to move. Muscles हमारी बोन को कवर करती है. आप देख रहे हो, देखो क्या एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे ये हमारी बोन थी, एक बोन, दो बोन को जहां पे बीच में से जॉइंट किया वो तो आपको पता लग गया जॉइंट होते हैं. और हमारी बोन किसको प्रोटेक्शन दे रही है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारी हार्ट हो गई, हमारी लंग्स हो गई. अब बोन को भी प्रोटेक्शन देने के लिए एक चीज है जिसका नाम है बेटा मसल्स. तो जो मैं आपको आपके ये कलर, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको पता चल जाए. ये जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ ना, ये जो प्रोटेक्शन दे रही है ये है बेटा आपकी मसल्स. किसको प्रोटेक्शन दे रही है? आपकी बोन्स को. ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो muscles covered our bones and help them to move. There are more than 600 muscles in our body. So हमारी bodies में how many muscles are there? Almost 600. So bones and muscles work together to make us walk, run, bend, etc. So muscles and bones की वजह से तो हम भाग पा रहे हैं, हम रन कर पा रहे हैं, हम वॉक कर पा रहे हैं, है ना. अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती, कुछ हम चल नहीं पाते, है ना, कुछ भी नहीं कर पाते फिर हम, है ना. कभी किसी की देखिए बोन टूट जाती है तो उनको फिर बेड रेस्ट दे दिया जाता है. आप लोगों ने टीवीज में देखा होगा, आपने घर में भी देखा होगा, है ना. तो अगर हमारी बॉडी में बोन में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम चल फिर नहीं पाते, है ना. सो या, सो if we want to play and work well, we must have strong muscles. अगर हमें खेलना है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में जाएं तो हमारी मसल्स को कैसा होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग. गुड. चलिए, मसल क्लियर हो गया. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स. कौन कौन सी मसल्स होती है? सबसे पहले बेटा आई मसल्स. आईज में भी मसल्स होती है, ठीक है. सो आई मसल हेल्प अस टू सी बाय मूविंग द आई बॉल. देखो आई बॉल होती है, इसको हम ऐसे ऐसे गोल गोल मूव कर पाते हैं. तो इसमें एक मसल्स है यहाँ पे. आप लोग अभी बड़ी क्लासेस में ना पूरा देखेंगे सिलेरी मसल्स एंड कौन कौन सी मसल्स होती है हमारे आईज में. तो हमारे आई बॉल को मूव करने के लिए पतली सी मसल्स होती है जिसको बोलते हैं आई मसल. तो फर्स्ट वन इज eye muscle. Second is heart muscle. So heart muscle help the heart to beat. Heart को beat करने में heart muscle help करती है. The work continuously till we are alive. और ये मसल अपना काम तब तक करती रहती है जब तक हम जिंदा है. जैसे ही हम डेथ होती है हमारे सारे ऑर्गन डेथ हो जाते हैं. तब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है. हमारा हार्ट पंप करता है तभी तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड में पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है. जैसे ही हार्ट रुक जाता है तभी देखो हार्ट अटैक हो गया. हार्ट अपना काम करना बंद कर दिया. अब हार्ट काम करना बंद कर दिया तो पूरा हमारी बॉडी में खून कैसे दौड़ेगा? खून पहुंचेगा नहीं पूरी बॉडीज में, तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं. अब ऑक्सीजन जिसको नहीं मिलेगी ऑर्गन को, हमको, तो वी विल डाई. ओके, so first one is eye muscle, second one is the heart muscle, third one is the stomach muscles. So stomach muscle help to push the food into stomach for digestion. stomach muscle से ही हमारा food push होके हमारा stomach में आता है digestion के लिए. Okay, so there are three types of muscle. It is clear? Okay, let's move on. Exercise. Exercise क्या होगा? उससे क्या होगा?
एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग करते हो या पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो? आई एम होपिंग कि आप लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करते ही होगे, है ना? तो देखते हैं एक्सरसाइज करने से क्या होगा। सो हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम खाना अच्छा अच्छा खाएं तो हमारी मसल्स हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। ओके, such foods as milk, egg, sprouts help in building healthy muscles. अगर हम healthy खाना खाएंगे तो हमारी मसल हो जाएगी strong. Okay? Running, skipping, walking, swimming, cycling and skating are the few examples of exercise. हम ये कोई भी exercise कर सकते हैं जिससे हमारी body थोड़ी active और वी कैन से थोड़ी से फास्ट हो जाती है। हम लोग ना मसल्स वगैरह वर्क बहुत अच्छा करते हैं फिर, है ना? सो स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग मसल्स है तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? फर्स्ट इज साइक्लिस्ट यूज देयर मसल्स टू पेडल। अगर मसल्स उसकी स्ट्रॉन्ग है तो वो साइकिल को अच्छे से पैडल कर पाएगा। हमारे देखते हो थाइस एरिया सब मसल्स ही तो है ना? चर्बी जिसको बोलते हैं, है ना? सो आप साइकिल कर पाओगे, है ना? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प अ वेट लिफ्टर टू लिफ्ट वेट। वेट लिफ्टर को लिफ्ट करने में मसल हेल्प करती है जिनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी। वीक मसल होगी तो नहीं, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। और स्ट्रॉन्ग कब बन सकते हो? जब आप हेल्दी खाना खाओगे और अच्छी सी नींद लोगे और हर रोज एक्सरसाइज करोगे। ठीक है? नेक्स्ट इज टेनिस प्लेयर्स नीड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू प्ले। टेनिस प्लेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग मसल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक्स या जिम्नास्ट यूज मसल्स व्हाइल परफॉर्मिंग। ये जिम्नास्टिक तो अपनी बॉडी को कभी उल्टा, कभी ऐसे, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, उनकी मसल्स तो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है वो किसी भी मतलब गुलाटियां नहीं मारते ऐसे ऐसे, देखो जिस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे हो इस तरीके से वो कर लेते हैं, है ना? सो नेक्स्ट, स्विमर्स यूज मसल्स व्हाइल स्विमिंग। स्विमर्स को भी चाहिए मसल्स, है ना? नेक्स्ट, फुटबॉलर्स नीड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू प्ले। मोस्टली जो भी एथलीट्स में है, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको मसल्स चाहिए। ठीक है? सो ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में। और हमें कोशिश करनी चाहिए एक्सरसाइज जितना हो सके थोड़ी देर ही करनी चाहिए। ओके ओके, देखो एक और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो जैसे इसमें लिखा है डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डाइजेशन मीन्स जब हम खाते हैं, हमने तो पीठ से चबा चबा दिया, थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, बट फिर हमारी बॉडी में और वो छोटा छोटा ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन अदर थिंग। We must eat healthy food and exercise every day to make our bones and muscles strong. अगर हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अच्छा अच्छा खाओ और एक्सरसाइज हर रोज करो। Strong bones and muscles allow us to work and play without feeling tired. Strong muscle होगी तो हम बहुत सारा खेल सकते हैं और हम थकेंगे कभी नहीं। ठीक है? सो बताओ आज से आप लोग स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाओगे या वीक मसल? Strong या weak? Of course, strong muscles. Good. So, next is posture. Posture देखो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे चलेंगे, कुछ ऐसे चलेंगे, है ना? तो ये posture है, आपकी बॉडी का किस तरीके से आपका वो है। देखो यहाँ पे देखो, आपकी फोटो में भी दिखाया हुआ है, हमें करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? सो posture क्या होगा? The position of our body when we stand, sit or walk is called posture. आप किस ढंग से चल रहे हो, आपका चलने का ढंग, आपका बैठने का ढंग, है ना? ये है बेटा क्या? posture. Okay? So we should always keep a straight and upright posture. हमें हमेशा कैसा posture रखना चाहिए? Straight and upright, इस तरीके से सीधा, ऐसे नहीं ऐसे करके बैठना है जैसे फोटो में दिखे, straight एकदम like this. Okay? A good posture help us to stay healthy. अगर हमारा posture सही है तो हम healthy भी रह सकते हैं। So it keeps our body in proper shape. हमारी body को proper shape में रखता है ये। So we must not drop our shoulder or bend our back while sitting and standing or walking. देखो हमें किस तरीके से posture रखना है बताओ, फर्स्ट गर्ल की तरह या सेकंड गर्ल की तरह? ऑफ कोर्स सेकंड गर्ल की तरह। अब बैठते टाइम आपको किस तरीके से पढ़ना है, फर्स्ट बॉय की तरह या सेकंड बॉय की तरह? सेकंड बॉय की तरह। अब खड़े कैसे होना है, फर्स्ट बॉय की तरह या सेकंड बॉय की तरह?
सेकंड बॉय की तरह। ओके, सो इस तरीके का पोस्चर आपने रखना है। क्लियर? सो पोस्चर क्या है? आपका बैठने का, चलने का ढंग कैसा है, ठीक है, ये है पोस्चर। चलिए आप देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। So there are many parts inside our body. Yes, there are many parts inside our body. They are called internal organs. What they call? They call internal organs that are present inside our body. Each of these parts have a special functions. जो internal parts होते हैं या जो internal organs होते हैं, उनका एक एक कोई ना कोई special functions होता है। वो क्या है? First is brain. So first is our brain. Okay, we cannot see our brain. Okay, we can see our eyes, our hands, our legs, but we cannot see our brain. So it is invisible. It is present in our body, but we cannot able to see it. Okay, so first let's study with brain. So what is brain? What is the function of the brain? Let's see. So brain help us to think and remember. ब्रेन तो हमें सब, हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन हमें बोलता है ऐसे करो, ऐसे मत करो, यहां जाओ, यहां मत जाओ। कौन बताता है? अब ब्रेन से ही तो पूछते हो, ठीक है। बोलते हैं ना जिनमें ब्रेन है वही तो ये सब चीजें कर पाएंगे। सो ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर। इट कंट्रोल द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को किसने कंट्रोल किया? ब्रेन। हार्ट, अब ब्रेन चीज समझ में आ गई आपको? मेन ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेकेंड वन इज हार्ट। सो हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी डिस्कस ऑलरेडी कि हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स से तो हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पा रही है। ओके, नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। किसकी? खाने की, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी बनी है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक, ऐसा होता है। देखो जैसे खाना आता है ना हमारे स्टमक में, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होके और जो वेस्ट होता है ना बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है एंड देन उसके बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, तो ये है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ वाव फैक्ट्स में भी लिखे। आवर ब्रेन इज समटाइम्स मोर एक्टिव व्हेन वी आर एट स्लीप देन व्हेन वी आर एट अवेक। मींस कभी कभी सोते टाइम हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू जब हम जागे हुए हैं। ठीक है जी। सो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। और नीचे जो समरी भी लिखी होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वैसे तो ये समरी में वही चीजें जो अभी हमने डिस्कस की है इस चैप्टर में, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। हमने क्या क्या चीज डिस्कस की? सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके का स्केलेटन होता है, बोन्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, मसल्स, कुछ टाइप्स मसल्स के, और लास्ट में हमने देखा इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ओके, सो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। So thank you so much for watching this video. I will meet you in your next class. Till then, thanks for watching. So now we'll move on chapter number 4, question and answers. Okay. So let's start the exercise. Okay. I am hoping so आपको chapter तो अच्छे से समझ में आया है। So आप पढ़ते हैं इसकी exercise के बारे में। Okay. First question is MCQ questions are there. How many bones are there in a human body? Tell me. 600, 800 या 206? How many bones? Of course, 206 bones are there. Second, after we swallow food, it goes into our stomach. Lungs में तो जाता नहीं खाना, ना तो ब्रेन में। ब्रेन का काम तो थिंक करने का है, कंट्रोल करने का है, बट खाना तो हमारे पेट में जाता है। नेक्स्ट इज which is not a internal organ, means ऐसा ऑर्गन जो इंटरनल नहीं है, वो विजिबल है। किडनी, ब्रेन या लिप्स? ऑफ कोर्स आपके लिप्स, क्योंकि किडनी एंड ब्रेन तो हम देख नहीं सकते, वो तो हम फोटो में देख सकते हैं सिर्फ, है ना, बट लिप्स को तो आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज फिल इन द ब्लैंक, वर्क कंटिन्यूअसली टिल वी आर अलाइव। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक क्या चलता रहता है? हमारा दिल चलता रहता है, धक धक धक।
देन दिल की धड़कनें चलती रहती है जब तक. Okay, next is some fill in the blanks. So help box are given below. From the help box you have to give me the answer. So shapes 206, food, exercise, walking and swimming. So first question is the skeleton gives fill in the blank to our body. Body को क्या देती है ये बेटा? Shape. कौन देती है? Skeleton. Okay. Second is there are fill in the blank bones in our body. Body में कितनी bones होती है? 202 bones. Okay. Third is healthy and regular fill in the blanks makes our muscles stronger. क्या स्ट्रॉन्ग हमारी मसल्स कब होगी? जब हम फूड खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे. सो फूड एंड एक्सरसाइज आ जाएगा इसमें, ये फूड एंड एक्सरसाइज. ओके. नेक्स्ट इज फोर्थ वन. fill in the blank and fill in the blanks are two good forms of exercise. हमने देखा था कुछ forms of exercise थी. तो उनमें से दो कौन सी है? वॉकिंग एंड स्विमिंग. सो हम यहाँ पे दोनों को मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये दोनों है गुड एक्सरसाइज. ठीक है. उसके बाद देखते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू हम कब लिखेंगे? जब स्टेटमेंट सही होगा. और फॉल्स कब लिखेंगे? जब स्टेटमेंट गलत होगा. ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. बोन्स आर हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी. बोन्स हमारी बॉडी का हार्ड पार्ट है. बिल्कुल ही सही बात है. तो हम यहां लिखेंगे ट्रू. ठीक है. सेकेंड इज आवर स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती है. देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ा है. देखो आपने यहाँ इसमें भी दे रखा, आवर स्केलेटन गिव्स द शेप्स एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. तो हमारा स्केलेटन क्या करता है? किसमें हेल्प करेगा? हमारी बॉडी को शेप एंड पूरी स्टैमिना देने में. सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. There are 500 muscles in our body. हमारी बॉडी में 500 मसल्स होती है. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. हमारी बॉडी में तो 206 मसल्स होती हैं. नेक्स्ट, lungs, heart, stomachs are internal parts of our body. Yes, it is true. It is internal. It is not visible. So these parts are internal parts. Okay. Now we will move on. Match the following questions and answers. So we will match 1 2 3 4 with 1 2 3 4. Okay. So skeleton is known as it gives the framework to bones. Yes. पूरी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वो स्केलेटन डिफाइन करता है. ओके. नेक्स्ट इज बोन्स. बोन्स क्या होती है? हार्ड एंड स्टिफ. बोन्स हार्ड होती है एंड मसल सॉफ्ट होती है. ठीक है. अभी हमने क्लास में देखा है ये चीज, वो मैच करेंगे हम. नेक्स्ट, स्टमक क्या हेल्प करती है बेटा? स्टमक हमें हेल्प करती है डाइजेशन में. ठीक है. ये हो गए मैचिंग. अब जल्दी से पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में. सबसे पहले आप मुझे बताइए ब्रेन का क्या फंक्शन होगा? टू थिंक. ओके. नेक्स्ट, लंग्स का क्या फंक्शन होगा? टू ब्रीथ. ओके. थर्ड इज हार्ट. हार्ट का फंक्शन है टू पंप द ब्लड. ओके. एंड स्टमक फंक्शन इज डाइजेशन. ओके. सो ये हो गए फंक्शंस. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या होता है? डज इट हेल्प्स अस? डज इट हेल्प करेगा? सो स्केलेटन हमें पता है, स्केलेटन आर द फ्रेमवर्क, okay, that defines our body. Okay. Of course the skeleton helps you. Skeleton क्या करता है? हमें हेल्प करता है. Okay. Next, second questions. How are bones useful to you? Bones useful क्यों होती है? Of course bones gives you a shape to your body. Okay. So that's why it is useful. Next is third. Name 3 parts of our body that skeleton protects. कौन से 3 पार्ट्स को हमारा स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है? ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये देखिए, जब हमने स्केलेटन पढ़ा था, किस किस को याद है? ये देखो दिख रहा है. स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स, ब्रेन, लिवर, हार्ट. तब मैंने इंपॉर्टेंट भी मेंशन किया था. तो इन तीनों चीजों को बेटा प्रोटेक्ट करके रखता है स्केलेटन. और बोन्स का क्या फंक्शन होता है? बोन वी नो 206 बोन्स थी.
और हार्ड एंड स्टिफ होती है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और बोन्स का फंक्शन है टू गिव शेप टू योर बॉडी। ओके, तो ये आंसर्स देखिए सारे हमने यहीं से ही निकाले जो हमने अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट है व्हाट हाउ आर जॉइंट्स यूजफुल? जॉइंट्स यूजफुल फॉर us. Why joints useful? It is mentioned here. Okay, here it is mentioned. Can you see here? Yeah. So joints are helpful. It's bend our body and it help us to move our body or bend our body. Okay, so we can bend our body with the help of joints. Okay, so these are the question and answers of this chapter. Hoping so this chapter is totally clear to you. Okay, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.